Hello, everyone. I thank you all for joining me in today's discussion. Budget 2021, that is the first budget post the pandemic coronavirus, will be known for many things. One amongst them will be the major landmark change brought under direct tax proposal, which completely revamped how assessments are to be conducted. We all know Section 147, that is the section which gives power to open or maybe reopen cases under income tax for 6 or 16 years where any income chargeable to tax had escaped assessment. This process has been completely revamped. Section 148 has been completely revamped. Section 153A, 153C that provided for assessments after a search. These sections have been phased out. A very, very important landmark change has been brought in the manner in which assessments under direct tax are to be concluded. I plan to discuss them today. I have a PPT ready. I'll be sharing that PPT. Today we'll be doing an in-depth analysis of amendments or maybe proposed amendments in section 147, 148, 153A, 153C and some other allied amendments. We'll be dissecting each and every provision clause by clause, understanding their scope, understanding whether it is for our benefit or whether it has prejudiced the assessees. We'll be discussing them in the coming slides. First, section 147. Section 147, सबको पता है, the section in which assessing officer got the power to assess or reassess somebody's case. This section has been completely ये बहुत लंबा सेक्शन था. पहले इसमें काफी सारे प्रोविजन थे, सब सेक्शन थे, क्लॉजेस थे. This section has been completely phased out and a new section has substituted this section. Now, this new section provides that if any income chargeable to tax in case of an assessee has escaped assessment for any assessment year, कोई income chargeable to tax has escaped assessment, then the assessing officer may, subject to provisions of section 148 to 153C, assess or reassess such income or recompute the loss, depreciation or any other allowance for such assessment year as provided. यानी majorly अगर कोई income chargeable to tax has escaped assessment. सर इसमें एक बहुत मेजर चेंज आया है. पहले ये होता था where assessing officer has any reason to believe that income chargeable to tax has escaped assessment. अब ये reason to believe, ये जो 3-4 शब्द है reason to believe, ये 3 जो शब्द है have been removed from section 147. These reason to believe शब्द acted as a safeguard in making any assessments. अभी हम इसको आगे इसका impact अभी हम आगे discuss करेंगे. अब सिंपल से प्रोवाइड करता है कि where any income chargeable to tax has escaped assessment, तो 148 से 153C करते करते आप उनकी असेसमेंट कर लीजिए. सेक्शन 147 के नीचे काफी सारी एक्सप्लेनेशन थी पुराने वाले, अब वो सारी रिमूव करके सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन छोड़ दी. वो कहता है इफ द असेसिंग ऑफिसर में असेस और रीअसेस इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड सच इश्यूज दैट कम टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली. मतलब जिसके लिए आपने 147 की प्रोसीडिंग चालू करी थी उनको तो आप असेस कर ही लेना, एंड अगर कोई इश्यू सब्सिक्वेंटली असेसिंग ऑफिसर को मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट, ही कैन आल्सो असेस और रीअसेस दैट इश्यू. द वर्ड यूजेस एंड. इसको काफी सारे कोर्ट्स ने ऐसे इंटरप्रेट किया था कि अगर प्रिंसिपल रीजन अगर आपका उस पर एडिशन नहीं होती तो कोई सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन या सब्सिक्वेंट इनकम एस्केपिंग अगर असेसिंग ऑफिसर को मिलती है तो उस पर भी असेसमेंट नहीं होती पाएगी. सेम वो प्रोविजन आज भी कंटिन्यू है, आप वो पोजीशन आज भी ले सकते हैं. इसके अलावा काफी सारी चीजें जो होती थी वो रिमूव कर दी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो वो कहता है कि रीजन टू बिलीव, पिछले वाले अगर सेक्शन से कंपेयर करेंगे, पिछले वाले प्रोविजन से अगर कंपेयर करेंगे तो पहले यूज होता था वेयर असेसिंग ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव. रीजन टू बिलीव रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑन पार्ट ऑफ एओ.
There had to be some live nexus between information that was in his possession and the reasons recorded by him. He could not act as a post officer, send a notice under section 148 on receipt of some information. He must apply his mind and he should have a reason to believe. Reason to believe should be of the assessing officer who's making the assessment. सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड था पहले रीअसेसमेंट करने से पहले 147 के अंतर्गत. अब ये 147 के अंदर जो रीजन टू बिलीव है, दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन फेस्ड आउट. डिपार्टमेंट का लॉजिक ये है कि रीजन टू बिलीव बहुत लिटिगेटिव शब्द है. इसमें इतनी लिटिगेशन होती थी, लड़ाइयां चलती थी कि क्या रीजन टू बिलीव है या नहीं है. दे आर कंप्लीटली रिमूविंग डिस्क्रिशन and to settle this issue they have phased out this concept of reason to believe. इसके अलावा there were some other 4 safeguards in case assessment was being opened after 4 years. उस केस में था कि income assessment due to that assessing officer was allowed to reopen assessment after 4 years only in case where there was failure to furnish a return under section 139 और 142(1) और 148. आपने रिटर्न नहीं भरी या फिर there was failure to disclose fully and truly all material facts. assessee ने fully and truly all material facts नहीं disclose करे. अगर assessee had already disclosed all material facts तो assessment could not have been made after 4 years. अब कई लोग कहते हैं कि तो 4 साल के बाद था. अब तो 4 से 6 के बीच में ये चलता था. अब तो 30 साल क्या कहते हैं प्रोवाइड ही करते हैं कि सिर्फ 3 साल के लिए 3 साल तक रीअसेसमेंट हो सकती है. नहीं सर, 10 साल तक भी हो सकती है इन सम अदर केसेस एंड आई विल बी कवरिंग दोस केसेस इन माय सब्सिक्वेंट स्लाइड. तो एक ये जो सेफगार्ड होता था फुली एंड ट्रूली ऑल मटेरियल फैक्ट, दिस कॉन्सेप्ट हैज आल्सो बीन फेज्ड आउट. उसके बाद एक बहुत लंबी डेफिनेशन थी इनकम चार्जेबल टू टैक्स. क्या होती है इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट, क्या होती है? इसकी एक बहुत लंबी सी डेफिनेशन थी. दिस एंटायर लंबी सी डेफिनेशन हैज बीन फेज्ड आउट एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ नैरो डेफिनेशन व्हिच इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड अलाउज एओ टू ओपन केसेस ओनली इन दोस केसेस, only in those circumstances. I'll be covering that in my subsequent slides. तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. सेक्शन 147 इतना ही है, खत्म हो गया. पहले 147 कितना लंबा था, उसको पूरा फेज आउट करके एक छोटे से सेक्शन से रिप्लेस कर दिया. नाउ कमिंग टू सेक्शन 148. अर्लियर सेक्शन 148 has also been substituted by this new section. तो जो पुराना 148 था वो एज इट इज बदल के नया सेक्शन डाल दिया. देखिए 148 में कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, सिवाय जो ये रेड पोर्शन मैंने हाईलाइट करा हुआ है. वो कहता था बिफोर मेकिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 and subject to provisions of section 148, assessing officer shall serve on assessee a notice along with copy of order passed under section 148D requiring him to furnish his return. देखिए ये जो लाल में रेड पोर्शन है, दिस इज द न्यू पोर्शन. इससे पहले सिंपल होता था बिफोर मेकिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 assessing officer shall serve a notice requiring assessee to furnish his return. अब कहता है before serving a notice under section 148 subject to 148A, assessing officer shall serve a notice and copy of order under 148AD. तो 148A एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया फाइनेंस एक्ट 2021 ने, और वो कहता है कि 148 करने से पहले 148A के अंदर जो भी लिखा है वो भी कर देना. साथ ही साथ जो क्लॉज डी में ऑर्डर पास होगा वो भी नोटिस के साथ दे देना. ये ऑर्डर में क्या है, 148 क्या है, विल बी कवरिंग इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. तो इसके अलावा 148 के मेजर प्रोविजन में कोई चेंज नहीं है, सिवाय कि इट हैज बीन मेड सब्जेक्ट टू 148A एंड कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 148AD हैज टू बी प्रोवाइडेड. अब एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ है 148 में, भी कहता है कि नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 अनलेस there is information with the AO which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment. सर पहले होता था कि there should be reason to believe that income chargeable to tax has escaped assessment. अब लिख के कह दिया that information should suggest
इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट, सर स्कोप बहुत वाइड कर दिया। पहले रीजन टू बिलीव में एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए था, अब वो लेवल का एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं चाहिए। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन आ गई जो प्राइमा फेसी सजेस्ट करती है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट, तो 148 के लिए एओ प्रोसीड कर सकता है। एंड प्रायर सैंक्शन ऑफ 151 रिक्वायर्ड। 151 का सैंक्शन सर हर केस में चाहिए होगा। जब हम 151 पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन सैंक्शन देगा, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है। तो बेसिकली पहले जो रीजन टू बिलीव इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड दैट देयर शुड बी इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट्स दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो वो जो टेस्ट था वो लेस डिफिकल्ट कर दिया गया। और सर इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट को भी समझा दिया। उन्होंने कहा जी ज्यादा आपको इधर उधर जाने की नहीं है, जो यहाँ लिखा है वही इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट का मतलब है, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एंड 148A information with the AO which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment means इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट मींस सर देखिए दो तरह के क्लॉजेस होते हैं, मींस और इंक्लूड्स। मींस कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा, दिस इज एग्जॉस्टिव इन नेचर। और इंक्लूड्स मतलब जो मैं यहां कह रहा हूं वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा अगर कोई और चीज लगे तो वो भी हो सकता है। दे हैव यूज्ड द वर्ड मींस एंड नॉट इंक्लूड्स। इसका मतलब ये जो दो क्लॉजेज है सिर्फ यही होंगे, इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट। बियॉन्ड इन दोनों के कोई और इंफॉर्मेशन, आई एम रिपीटिंग, कोई और इंफॉर्मेशन विल नॉट tantamount टू इनकम चार्जेबल टू टैक्स दैट हैज एस्केप्ड असेसमेंट। सर स्कोप बहुत डिफाइन कर दिया, एओ की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल फेज आउट कर दी। अगर कोई लाके कल को कोई, अब मैं पहले ये दो बता देता हूं फिर मैं उसके बाद आगे इसको डिस्कस करूंगा। अब ये दो चीजें क्या है, एनी इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड in case of assessee for relevant assessment year in accordance with risk management strategy formulated by CBDT. Information flagged in accordance with risk management strategy. और सर मेमोरेंडम में लिखा है कि दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू द एओ इन अ कंप्यूटराइज्ड मैनर। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने आजकल अपने सिस्टम्स बहुत रोबस्ट बना लिए हैं, वो एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन, और उस स्ट्रैटेजी फ्लैग होती है तभी एओ नोटिस दे सकता है, या फिर इफ एनी फाइनल ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड रेज बाय सीएजी। सीएजी जब डिपार्टमेंटल ऑडिट करती है, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करती है कि इस साल में इस असेसमेंट में ये चीज गलत हुई है, तो इन्हीं दो केसों में 148 हो सकता है। या तो एओ के कंप्यूटराइज्ड मैनर में एक इंफॉर्मेशन रिसीव हो इन अकॉर्डिंग विद रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, या कोई फाइनल ऑब्जेक्शन, किसी एओ से आपकी लड़ाई हो गई तो वो आपको 148 का नोटिस नहीं दे सकता ऑन एनी फ्लिम्जी ग्राउंड। There has to be satisfaction of one of these two condition, या तो सीएजी ऑब्जेक्शन हो या कोई इंफॉर्मेशन उसके पास ऑटोमेटेड मैनर में आती है थ्रू इन अकॉर्डेंस विद रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द सीबीडीटी। इसके बाहर कोई नहीं। कोई टैक्स एवेजन पिटीशन फाइल होती है आपके खिलाफ, नॉट एन इश्यू, एओ कैन नॉट मेक एनी 148 की असेसमेंट अनलेस दैट टैक्स एवेजन पिटीशन इज फ्लैग्ड इन अकॉर्डेंस विद रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। सर डिपार्टमेंट कहता है कि इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं हो सकता 148 करने का। अब ये डिपेंड करता है ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनेगी कैसे। अगर यही बहुत वाइड बन गई तो ये मींस का जो मतलब है वो मतलब ही मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर ये भी एक कंस्ट्रेंड स्ट्रेटजी बनाते हैं, कंस्ट्रेंड एक वो बनाते हैं, अप्रोच रखते हैं इसमें, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, तभी इसका जो पार्लियामेंट की इंटेंशन थी कि 148 का स्कोप डिफाइन कर दो और डिस्क्रिशन इससे रिमूव कर दो, वो तभी पूरी हो पाएगी अगर एक रिस्ट्रिक्टेड और एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड स्ट्रेटजी बनती है। बट अगर वो स्ट्रेटजी वाइड बन गई तो अगेन 148 का स्कोप फिर से वाइड हो जाएगा। हाँ बट ये है कि अगर उस स्ट्रेटजी में कोई चीज नहीं लिखी और वो सीएजी के ऑब्जेक्शन में नहीं है तो उस पर 148 नहीं हो सकता, इस पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज्ड है मींस एंड नॉट इंक्लूड्स। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 कह दिया कि पहले तो ये बता दिया कि एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि सिर्फ इन दो केसों में 148 हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक और एक्सप्लेनेशन डाल दी, इट विल बी डीम्ड इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट
income chargeable to tax has escaped assessment for 3 preceding years immediately preceding the assessment year. एक तो वो, इसके अलावा इट विल बी डीम्ड कि कोई इंफॉर्मेशन विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर 3 years, एक नहीं दो नहीं 3 साल, prior to the year in prior to the relevant year in case of a search, कोई सर्च होती है या फिर कोई रिक्विजिशन होता है 132A में, या कोई सर्वे कंडक्ट होता है 133A में, कोई असेट सीज होता है, रिक्विजिशन होता है इन एनी अदर इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनी डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है और सीज होता है इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो उस केस में भी इट विल बी डीम्ड दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। बेसिकली सर ये सर्च एंड सीजर क्योंकि इन्होंने फेज आउट कर दिया मैं जो आगे बताऊंगा, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने कह दिया कि इन केसेस में तो 3 साल कंपलसरी हो जाएगा। सर पहले 6 साल होता था, अब ये 6 को घटा के 3 कर दिया गया है। इट विल बी डीम्ड कि इन 3 केसों में तो 6 हो जाएगा। सर्च में 6 होता था, बट सर्वे में सिर्फ उसी साल का केस खुलता था 143(2) में। अब यहाँ पे 3 साल पीछे का भी फ्री में खुल जाएगा। जिस साल सर्च होगी उस साल 143(2) में केस खुलेगा, और उससे 3 प्रीसीडिंग ईयर का 147 रेड विद 148A में 148 में खुल जाएगा। बट दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्चेज हैपनिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2021, यानी 31 मार्च को कोई भी सर्च होती है तो इट विल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द प्रीवियस प्रोविजंस, it will not apply to them. Any search that has happened on or after 1/4/2021, only these searches will come within the purview of revamped section 147 148. आगे चलते हैं सर। 148 खत्म, पहले जो लंबा चौड़ा सेक्शन था हैज अगेन पूरा का पूरा इन्होंने रिवैम्प करके एक छोटा सा नया सेक्शन प्रोवाइड कर दिया। इसमें पहले बताता है कि आपको 148 में नोटिस आएगा, फिर बताता है इनकम चार्जेबल टू टैक्स असेसमेंट एस्केपमेंट क्या होती है, और फिर बताता है कि सर्च के केस में इट विल बी डीम्ड इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप्ड असेसमेंट फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर्स आल्सो। अब सर आते हैं 148, हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं 148. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी 148A. 148A is a new section that has been inserted by Finance Act 2021. इससे पहले कोई भी 148 टाइप सेक्शन नहीं था। सर हम सब जानते हैं जीके एंड ड्राइव शाफ्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रिंसिपल था जो कहता था कि असेसी ऑफिसर विल फर्स्ट प्रोवाइड टू द असेसी, असेसी सबसे पहले अपनी रिटर्न भरेगा, देन असेसिंग ऑफिसर विल प्रोवाइड टू द असेसी रीजंस व्हाई हिज केस वाज सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी प्रोसीडिंग अंडर 147, फिर असेसी विल हैव अ राइट टू डिफेंड कि 147 में मेरा केस बनता नहीं है, एंड इट विल बी कंपल्सरी, इट विल बी ऑब्लिगेटरी, इट विल बी मैंडेटरी सॉरी ऑन पार्ट ऑफ एओ टू पास अ रीजनड ऑर्डर कि आपका केस 148 में 147 में क्यों बनता है। दिस safeguard that was provided by GK and drive shaft has been given the color of legislature. legislature ने 148A करके इसको इंट्रोड्यूस ही कर दिया सेक्शन। ये एक बहुत रिमार्केबल और एक बहुत इंपॉर्टेंट और वेलकम मैं कहूंगा चेंज है, बहुत वेलकम चेंज है 148A। बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे जहां पे 148 मेंटेनेबल ही नहीं था, देयर वाज एक्सप्रेसली नो रीजन व्हाटसोएवर, बट बिकॉज इंफॉर्मेशन आई थी तो उसको आगे प्रोसीडिंग करनी पड़ती थी, रीजंस में भी कभी कभी केस ड्रॉप हो जाता था। अब सर 148A में एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि अगर कोई बहुत ही फ्लिमजी ग्राउंड है, कोई मतलब बनता ही नहीं है आपका केस, तो हम 148A के बाद ही बंद कर देंगे, 148 तक जाएंगे ही नहीं। अब हम पढ़ते हैं 148 कहता क्या है, 148A सॉरी कहता क्या है। असेसिंग ऑफिसर शैल सिग्निफाई करता है इट इज मैंडेटरी, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। शैल सिग्निफाई करता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एओ कि यहाँ पे जो भी लिखा है वो उसे करना ही करना है, उसकी ऑप्शन नहीं है, उसकी डिस्क्रिशन नहीं है, इट इज नो लॉन्गर डिस्क्रिशनरी। क्योंकि बहुत सारे लोग कोई जीके एंड ड्राइव शाफ्ट वाला प्रोसीजर फॉलो करता था या नहीं करता था, अब लिख के कह दिया कि आपको करना ही करना है। असेसिंग ऑफिसर शैल बिफोर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 कंडक्ट एन इंक्वायरी कंडक्ट कीजिए इफ रिक्वायर्ड with prior approval of specified authority with respect to income which suggests income chargeable to taxes escaped assessment। जो असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलेगी चाहे सीएजी और ऑब्जेक्शन के थ्रू या फिर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की, उस पर आप चाहो तो इंक्वायरी कंडक्ट कर लो। सर यहाँ पे मैंने लिखा शैल,
और यहां लिखा हुआ है इफ रिक्वायर्ड। अब ये तो यहां डिस्क्रिशन दे दी, ऊपर मैंडेटरी कर दिया और नीचे डिस्क्रिशनरी कर दिया। सर इसका सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर 4 क्लॉजें लिखी है ABCD। तो पहला क्लॉज डिस्क्रिशनरी कर दिया कि इंक्वायरी अगर जरूरत लगे तो करना, हर केस में करने की मैंडेट नहीं है आपको। आफ्टर इंक्वायरी जो BCD क्लॉजेज हैं ये सारे के सारे मैंडेटरी है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। सिर्फ आपको फर्स्ट क्लॉज में हमने डिस्क्रिप्शन दी दैट इफ यू फील लाइक मेकिंग मोर इंक्वायरी on the basis of the information that you have received, you can conduct if you require to make more inquiry. And again, prior approval. Inquiry करने से पहले सर, नोटिस देने से पहले तो आपको अप्रूवल चाहिए थी सैंक्शनिंग अथॉरिटी की 151 की। अब आपको इंक्वायरी करने से पहले भी यू कैन नॉट मेक एन इंक्वायरी विदाउट, एक सेफ गार्ड डाल दिया है कि असेसिंग ऑफिसर डायरेक्टली किसी को चिट्ठी नहीं लिख सकता 148A में। He needs the approval of CIT, the sanctioning authority. अब मैं बताऊंगा sanctioning authority कौन है। He cannot proceed suo moto. He needs the approval. It's a safeguard to ensure that inquiry is being conducted only in requisite cases, not in every case. फिर कहता है provide an opportunity of being heard to the assessee with prior approval of specified authority by serving upon him a notice to show cause within prescribed time as to why a notice under section 148 should not be issued on the basis of information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment. ये कहता है कि मैं आपको opportunity of being heard दूंगा by serving a show cause notice within the prescribed time as to why your case should not be picked up for assessment proceeding by issue of notice under section 148 on the basis of information that I have. तो सर इंफॉर्मेशन अभी तक क्या होता था कि फर्स्ट असेसी हैड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, देन ही आस्क्ड फॉर रीजंस, और रीजंस मिलते थे तो असेसी केम टू नो व्हाई हिज केस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी प्रोसीडिंग अंडर 147। अब सर 148A आपको पहले ही बता देगा, रिटर्न तो 148 के नोटिस के बाद भरनी है, ये प्रोसेस प्रायर टू 148 का नोटिस है। असेसिंग ऑफिसर पहले ही आपको एक शो कॉज नोटिस दे देगा जिसमें वो आपको पूछ लेगा कि कारण बताइए, शो कॉज व्हाई योर केस शुड नॉट बी पिक्ड अप फॉर स्क्रूटनी प्रोसीडिंग, व्हाई योर अंडर 147 by issue of notice under section 148, and he will provide you the information on the basis of which it is suggested that income chargeable to tax has escaped assessment. I think एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेलकम स्टेप है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि 147 और 148 की प्रोसीडिंग्स क्यों इन्वोक की जा रही है। यू विल नॉट हैव ताकि आप अपनी जो रिटर्न भरते हैं वो आप अकॉर्डिंगली भर दीजिए। कई बार सर जेन्युइनली असेसी ने कंसील की होती है एंड ही वांट्स टू सेटल द केस बाय ऑफरिंग दिस इनकम टू टैक्स, उसको पता नहीं होता तो पहले वो अपनी रिटर्न सेम अमाउंट की भर देता है और फिर असेसमेंट होती है जिसमें एडिशन होती है। अगर मान लीजिए आपको पहले ही पता चल जाए कि आपका इसलिए रिटर्न इस रीजन से आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केपमेंट असेसिंग ऑफिसर को लग रही है तो और आप उसको वॉलंटरली डिस्क्लोज कर दो तो काफी हद तक आपकी प्रोसीडिंग वैसे ही सेटल हो सकती है। आई थिंक दिस इज द वेरी रिमार्केबल एंड वेरी 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 वेलकम स्टेप एंड एक तरह से ट्रस्ट फैक्टर डिपार्टमेंट ने एसएससी के हाथ में दे दिया। एक केस भी था मिथिलेश कुमार त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो कहता था कि पहले ही बता दो ना कि क्यों आपका केस 148 में हम लगा रहे हैं, ताकि उसको जो कुछ करना है एसएससी इज नॉट इन अ डार्क व्हाई हिज केस इज बीइंग पिक्ड अप फॉर असेसमेंट और रिटर्न वो अकॉर्डिंगली भर दे। ही कैन टेक अ कॉल। अब मैं जब रिटर्न भरूंगा तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो वॉलंटरली इनकम डिस्क्लोज कर सकता हूं। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्लॉज सी कहता है 148 में जो आपको नोटिस दिया जाएगा, असेसिंग ऑफिसर शैल कंसीडर द रिप्लाई ऑफ द असेसी फर्निश्ड। असेसिंग ऑफिसर आपका रिप्लाई पढ़ेगा। और क्लॉज डी कहता है डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग रिप्लाई ऑफ द असेसी, असेसी का रिप्लाई देख के वेदर और नॉट it is a fit case to issue notice under section 148 by passing an order with prior approval of specified authority in prescribed timeline. असेसिंग ऑफिसर आपके रिप्लाई के बाद he will scrutinize that reply, he will apply his mind on that reply and he will pass a reasoned order
why this is a fit case to issue notice under section 148 of the Income Tax Act. तो अब 148 शुरू करने से पहले you will get a notice, inquiry होगी सबसे पहले, if required, then you will get a notice, you will have a right to reply, and your reply will be considered by the assessing officer, and he will pass an order under section he will pass an order why your case should be picked up for scrutiny proceedings by issue of notice under section 148. अब क्या ये order appealable है? The answer is no. कोई CIT अपील के सेक्शंस वगैरह में कोई अमेंडमेंट नहीं लाया गया. दिस ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल. बट एक सेक्शन है 264 जो कहता है वेयर एनी ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी अथॉरिटी लोअर टू सेक्शन कमिश्नर which is prejudicial to the interest of assessee can approach CIT for review of that order. तो क्या इस पे 264 हो सकता है? Possibly yes, क्योंकि इन्होंने इसको ऑर्डर का दर्जा दे दिया. क्या इस पे रिट लगाई जा सकती है? Yes, क्योंकि ऑर्डर अपीलेबल नहीं है तो इस पे रिट भी लगाई जा सकती है. सर पहले 148 में प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता था, रीजन मिलते थे, रीजन का रिप्लाई दिया जाता था, उसके बाद एक ऑर्डर पास होता था. दैट वाज टेक्निकली नॉट एन ऑर्डर. वो रीजन डिस्पोजल कहते थे और उसके बेस पे लोग रिट लगा लेते थे. और हाई कोर्ट वाज लिबरल इनफ टू कंसिडर इट a proper order for invoking section 140 for exercising its jurisdiction under article 226, that is entertaining the writ. अब तो ये प्रॉपर ऑर्डर है, एक नॉन अपीलेबल ऑर्डर. तो अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो कि साहब इसमें ये 5 चीजें गलत है, तो हाई कोर्ट इसको रिट में भी रिव्यू कर सकता है. रिट jurisdiction of honorable high court can also be exercised in case 148 एक ऑर्डर आपके फेवरेबल में नहीं आता. 264 is an option. Whether it will succeed or not, time will tell. Prima facie, on the basis of reading, it is apparent that 264 is maintainable, वरना रिट तो है ही है. और बिकॉज इट इज अ नॉन अपीलेबल ऑर्डर, अब डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन आपको हाई कोर्ट की भी मिल जाएगी. सिंपल है. असेसी सेल कंडक्ट करेगा इंक्वायरी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आपका रिप्लाई कंसिडर करेगा एंड फाइनली डिसाइड करेगा. और उसके बाद आपको 148 का नोटिस मिलेगा. और मैंने बताया था कि नोटिस के साथ साथ आपको 148 क्लॉज डी का ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर आपको साथ में नोटिस के मिलेगा. अब कहते हैं 148 का जो प्रोसेस है मत फॉलो करना इन 4 केसों में. सर्च, सर्वे, कोई असेट और रिक्विजिशन हुआ, असेट सीज हुआ या रिक्विजिशन हुआ, या फिर कोई बुक्स और डॉक्यूमेंट सीज, और बेसिकली सर्च एंड सीजर के केसों में 148 का प्रोसेस, दैट इज गिविंग अ नोटिस, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और पासिंग एन ऑर्डर, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड. सर्च एंड सीजर के अलावा हर केस में आपको 148 का प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी है ही है. नेक्स्ट आते हैं सर सेक्शन 149. 149 जो आज तक हमारे को टाइम लिमिट्स बताता था, वो कहता था 4 years, 6 years एंड 10 years. 6 years हो जाता था और 10 years, सॉरी 16 I'm sorry, 16 years in cases of foreign asset. मेजरली अगर हम डोमेस्टिक असेट्स की बात करेंगे तो 6 साल तक असेसिंग ऑफिसर जा सकता था. अब दिस जनरल लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. 3 years from the end of relevant assessment year, AO can go. इसके बियॉन्ड असेसिंग ऑफिसर नहीं जा सकता. साथ में उन्होंने कह दिया 3 साल के बियॉन्ड भी जा सकता असेसिंग ऑफिसर है इफ. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू पे प्रॉपर अटेंशन टू ईच एंड एवरी क्लॉज, क्योंकि अगर ये 5 क्लॉज सेटिस्फाई नहीं होते तो AO कैन नॉट गो टू एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 10 years. Assessing officer has in his possession, there must be something which is in possession. Possession means उसके पास कोई चीज होनी चाहिए physical possession में. Merely idea is not something in possession. Assessing officer को रात को सपना आया कि पारस डावर की 50 लाख से ज्यादा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, तो वो मेरा 148 नहीं कर सकता, 147 नहीं कर सकता. He must have something in his possession. क्या होना चाहिए? Any books of account or document or evidence,
या तो कोई डॉक्यूमेंट हो या एविडेंस हो या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट होगा जो रिवील करती है दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट. Those books, document or evidences must reveal. There must be a direct link between the evidence, that document, that there must be a direct link showing. It must demonstrate that income chargeable to tax has escaped assessment. यानी risk assessment strategy के तहत अगर किसी को इंफॉर्मेशन मिलती है कि पारस डावर ने 70 लाख की गाड़ी खरीद ली, यानी मोर देन 50 लाख रुपीस की गाड़ी खरीद ली, तो it will not be sufficient. That information must reveal that income chargeable to tax has escaped assessment. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? That information must reveal. अगर उसमें यह लिखा हुआ है कि पारस डावर ने रिटर्न भरी थी 12 लाख रुपए की, लेकिन उस साल उसने गाड़ी खरीदी 70 लाख की, तो हाँ, this information is revealing prima facie, not conclusively, that information is escape, that income chargeable to tax as escaping assessment. But अगर merely ये information मिलती है कि गाड़ी खरीदी गई 70 लाख रुपीस की, this will not be sufficient. This information must itself reveal. Assessing officer अपना दिमाग अप्लाई करके ये फाइंड आउट करता है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट. ये टेस्ट नहीं है. अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन आती है कि 70 लाख की गाड़ी खरीदी पारस डावर ने, दिस इज नॉट सफिशिएंट. असेसिंग ऑफिसर चाहे बाद में मेरी रिटर्न देखता है कि रिटर्न इनकी 10 लाख की थी बट गाड़ी इनकी 70 लाख की है. दिस इज नॉट व्हाट हैज बीन स्टेटेड बाय द एक्ट specifically provides that that particular document or evidence must itself reveal. It should be self-revealing. Assessing officer की application of mind की जरूरत नहीं है. That should be provided in the information. तो सबसे पहला step जहां आपका 3 साल के beyond केस लग रहा है वो ये है कि साहब वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, आप मांगिए उनसे. अभी देखिए कोई लॉ तो इस पे बना नहीं है बट आई एम श्योर आपको इस पे मांगना पड़ेगा, चाहे आरटीआई लगा के मांगिए चाहे कैसे मांगिए. ऑनलाइन प्रोसीजर भी आजकल थोड़े टिपिकल हो गए हैं प्रोसेस, क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन मांगने की सच कोई जगह नहीं होती. तो आई एम श्योर ये वाला प्रोसेस भी आप चाहे आरटीआई के थ्रू मांगिए कैसे भी मांगिए, यू मस्ट फाइट. और मान लीजिए और वो इन्फॉर्मेशन में सिर्फ ये लिखा हुआ है, एविडेंस में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि पारस डावर ने 70 लाख की गाड़ी खरीदी और ये नहीं लिखा कि पारस डावर की इनकम उस साल 10 लाख रुपए थी, तो दिस विल नॉट स्पेसिफाई द टेस्ट प्रोवाइडेड हियरिन and you can simply say that you have no jurisdiction to reassess my case. ये बहुत इंपॉर्टेंट और माइन्यूट अमेंडमेंट है which I'm sure everybody should understand. Assessing officer has in possession books of account, document or evidence which reveal that income chargeable to tax represented in the form of asset. जो income chargeable to tax है it must be represented in the form of asset, यानी deemed income को phase out कर दिया. एक asset क्लियरली एस्केपिंग असेसमेंट होना चाहिए. आपकी कैश की इनकम थी, आपने इनकम अपनी छुपाई, कुछ किया, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट ओनली इन दोस केसेस. मान लीजिए मैंने 56(2)(10) में जो बताता है कि अगर मैं सर्कल रेट से कम पे प्रॉपर्टी खरीदता हूं, एक प्रॉपर्टी थी 5 करोड़ रुपए के जिसका सर्कल रेट था और मैंने उसको 3 करोड़ रुपए की खरीद ली, यानी 2 करोड़ लेस देन सर्कल रेट. क्या ये क्लियरली इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट है? दिस इज इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट. दिस इज अ डीम्ड इनकम. सेक्शन 4 क्या कहते हैं, डीम्ड डिविडेंड जो होता है आपका, इट इज अ डीम्ड इनकम. 50C इट इज अ डीम्ड इनकम. 43CA इट इज अ डीम्ड इनकम. मैंने कोई प्रॉपर्टी बेच दी 5 करोड़ रुपए की जिसका सर्कल रेट था 10 करोड़ रुपया, तो मैंने 5 करोड़ लेस अमाउंट में बेची है, तो ये जो 5 करोड़ मेरी डीम्ड इनकम बन रही थी ये कवर नहीं होंगे यहाँ पे. दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट. इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट. सर कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सेक्शन 68 इज आल्सो अ डीमिंग फिक्शन. आपको लोन आया and that loan will be deemed to be your income if you are not able to provide the identity, credit worthiness and genuineness. That is you're not able to properly explain the sources of that loan. तो आई एम श्योर अगर ये भी मान लीजिए किसी जज के आगे आर्ग्यू किया जाए और उनको शायद समझ में आ जाए कि 68 इज आल्सो अ डीमिंग फिक्शन, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट,
सर तो 68 ही फेज आउट हो जाएगा 148 के दायरे से आफ्टर 3 इयर्स। बट अगेन दिस इज अ वेरी 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 लिटिगेटिव ओपिनियन एंड आई एम श्योर इस पे एक मैंने फूड फॉर थॉट दिया है लोगों को सोचने का। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल चलेगा ही चलेगा, बट आई एम श्योर वी मस्ट ट्राई। एंड income chargeable to tax represented in the form of asset which has escaped assessment or likely to amount to 50 lakh or more, 50 लाख से ज्यादा। 50 लाख से कम होगी तो 148 नहीं हो सकता, 50 लाख से ज्यादा होगी तभी 3 ईयर के बियॉन्ड 148 जाएंगे। एंड इट विल बी सील्ड फॉर एवरी ईयर्स इंडिविजुअली, हर साल को इंडिविजुअली देखना है। ये नहीं कि क्या कहते हैं मेरा 3 साल में मान लीजिए कंबाइंड इनकम 50 लाख से ज्यादा एस्केप हो रही है, नो, एवरी ईयर 148 करना है तो आफ्टर 3 इयर्स तो यू हैव टू, यू देयर मस्ट बी एन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बियॉन्ड मोर देन और इक्वल टू 50 लाख रुपीज। इसके अलावा सर एक और प्रोवाइजो डाल दिया, वो यहाँ पे नहीं है बट मैं वो भी बता देता हूँ कि अगर कोई, देखिए अब 3 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया था, इससे पहले 6 साल थे। तो 31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2014 के केसेस टाइम बार हो रहे थे। 31 मार्च 2014 एंडिंग फाइनेंशियल ईयर के का नोटिस 31 मार्च 2021 के बियॉन्ड नहीं आ सकता था। यानी 31 मार्च 2013 का नोटिस तो आ ही नहीं सकता था। देखिए सर हम भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए कि कोविड ने 31 मार्च 13 की भी डेडलाइन 31 मार्च 21 बढ़ा दी। हम 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, यानी हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए कर रहे हैं अभी। 31 मार्च 2013 का नोटिस 31 मार्च 2021 तक नहीं आ सकता था बिकॉज इट वाज कवर्ड बाय द लिमिटेशन अंडर सेक्शन 149। बट आज की डेट में अगर हम 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर देखते हैं तो 31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2010 तक एंडिंग फाइनेंशियल ईयर के नोटिस आ सकते हैं। यानी 10-11 फाइनेंशियल ईयर, 11-12 फाइनेंशियल ईयर, 12-13 फाइनेंशियल ईयर के भी नोटिस आ सकते हैं जो पहले नहीं आ पाते। तो उन्होंने कह दिया कि अगर कोई नोटिस पहले नहीं आ सकता था पुरानी लॉ में 31 मार्च 2021 तक, तो जस्ट बिकॉज हमने 6 से 10 साल कर दिया वो आपको अभी भी नहीं आएगा। सिंपल है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि 31 मार्च 2013 का नोटिस ड्यू टू कोविड उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया था 1 साल से, तो वो आपको 31 मार्च 2021 तक आ सकता है। अब सरकार की खैर इंटेंशन ये नहीं थी कि 31 मार्च 2013 का भी नोटिस आपको दे दे, बट लॉ ये कहता है कि जिसका नोटिस 31 मार्च 2021 तक आ सकता है वो नोटिस आप वैलिडली सर्व कर पाएंगे। तो 31 मार्च 2013 एंड 14 फ्री में साथ में कैरी हो गए इस प्रोविजन के तरीके से। बट 31 मार्च 2013 के लिए वी हैव टू ब्लेम कोरोना। नेक्स्ट इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज जहाँ पे जो केसेस थे फॉर स्पेसिफाइड अथॉरिटी फॉर बोथ 148 एंड 148 या 3 इयर्स और लेस थे, वहाँ प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर और कमिश्नर और डायरेक्टर, कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर। एंड मोर देन 3 इयर्स केसेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डीजी, प्रिंसिपल चीफ, और अगर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नहीं है तो चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल। तो इन नटशेल कमिश्नर और डायरेक्टर विल बी योर अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर 3 इयर्स और लेस, और बियॉन्ड 3 इयर्स चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल एज द केस में बी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डीजी। तो एक बहुत हायर अथॉरिटी को सैंक्शनिंग की पावर दी गई है, और सैंक्शनिंग की पावर सैंक्शन प्रायर लेना ऑलमोस्ट हर प्रोसेस में मैंडेटरी कर दिया गया है। अब ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट भी इसको कितना तक कर पाएगा, वो भी एक देखने की चीज होगी। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 153 एंड 153C। 153 और 153C में स्पेसिफिकली कोई चेंज नहीं आया सिवाय ये लिखने के कि नो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 143A एंड 153C in relation to any search initiated or books of accounts or other document requisition under 132A on or after 1st April 2021, यानी 153 और 153C have been phased out but only in respect of searches initiated on or after 1/4/2021, यानी 31 मार्च तक भी अगर कोई सर्च होती है तो it will be covered by the prior provision। और ये कहता है वर्ड इनिशिएटेड, अगर कोई 5 दिन सर्च चलती है
तो 31 मार्च देखा जाएगा। 31 मार्च को अगर कोई सर्च शुरू होती है और 4 अप्रैल को वो खत्म होती है, तो हमें देखना है इनिशिएशन की डेट क्या है। इनिशिएशन की डेट इज बियॉन्ड, इज बिफोर 1 अप्रैल, तो इट विल बी कवर्ड बाय द ओल्ड रिजाइम। 1 अप्रैल के बाद 153A और 153C नहीं होगा। 147 रेड विद 148 में आपको नोटिस मिलेगा और आगे चलेगा प्रोसेस। With this, we complete our deliberation for today. Thank you all for joining. Thank you.